Dear learners, welcome back again in our today's session. So, as you can see that today we are going to talk about on the topic principles of curriculum. So, before going to start our new topic, let's understand the meaning of curriculum. आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है पाठ्यक्रम के सिद्धांत। पाठ्यक्रम के सिद्धांत के विषय को डिटेल में जानने से पहले यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ curriculum. The term curriculum is derived from the Latin word currere, which means a kind of route which the learners travels. All the activities going on in the school or outside of the school is called curriculum. It is a basic to the intellectual, physical, moral and emotional development of the child. अगर हम बात करें पाठ्यक्रम के शाब्दिक अर्थ की, तो पाठ्यक्रम शब्द करिकुलम का हिंदी रूपांतरण है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूररे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है एक प्रकार का पाथ या एक प्रकार का रूट जिस पर लर्नर अपनी शिक्षण गति को दिशा प्रदान करता है या जिस पर अधिगमकर्ता दौड़ता है। द नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है, तो पाठ्यक्रम से शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो तात्पर्य है कि जो क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर जो एक्टिविटीज कराई जाती हैं वह सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। सो इट इज द बेसिक टू द इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फ्यू डेफिनेशन. The first definition is given by Kerr. According to the Kerr, curriculum comprises all the learning which is planned and guided by the school, whether it is carried on in group or individually, inside or outside of the school. The next definition, this definition is given by Cunningham. According to the Cunningham, curriculum is a tool in the hands of the artist. Artist here, teacher, to mold his her materials. Material here, student, according to his her ideas. Ideas here, objectives. In his her studio. Studio here, college or school. So now we are going to discuss about the principles of curriculum. So let's understand the principles of curriculum. The first principle is principle of child-centeredness. As the modern education is child-centered, the curriculum should also be the child-centered. It should be the based on the child's need, interest, abilities, aptitude, age, mental level and circumstances. The child should be the central figure in any scheme of curriculum constructions. अगर हम बात करें चाइल्ड सेंटर्ड प्रिंसिपल की, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वह है छात्र केंद्रित सिद्धांत। जो अगर हम कोई भी पाठ्यक्रम का निर्माण करने जा रहा है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, अगर आप पाठ्यक्रम को डिजाइन करने जा रहे हैं तो पाठ्यक्रम चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम बच्चे की आवश्यकता, बच्चे की एबिलिटीज, बच्चे की आयु, बच्चे की मेंटल एज, बच्चे की परिस्थिति, सभी चीज को ध्यान में रखकर उस पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। चाइल्ड को सेंट्रल में रखकर पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाना चाहिए। Now the next one is principle of community centered. Though the child's development and growth are the main consideration of curriculum construction, yet his social behavior is also to be suitably developed. Both the individual development and the social development of the child deserve equal attention. The challenged child
has to live in and for the society. Therefore, his needs and desire must be according to the community. अगर हम बात करें सेकंड प्रिंसिपल की, जो समुदाय केंद्रीकरण पर बल देती है, तो पाठ्यक्रम का निर्माण समुदाय को ध्यान में रखकर, समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो समुदाय के लिए उपयोगी हो, बच्चा उस समुदाय में अपने आप को सहज महसूस करे, उस समुदाय की योग्य महसूस करें, उसकी वैल्यूज, उसके एटीट्यूड और उसकी स्किल्स उस समुदाय के अकॉर्डिंग डेवलप हों। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस। करिकुलम इज मेनली फॉर लर्नर्स, so the age, interest, capacity, aspiration, needs and psychology of the learners should be taken into an account. The curriculum should be centered around the activities of pupil. It should provide the well-selected activities according to the general interest and developmental stage of the children. अगर हम बात करें एक्टिविटी सेंटर्डनेस की, तो करिकुलम एक्टिविटी सेंटर्डनेस होना चाहिए, क्योंकि बच्चा कुछ कर कर सीखेगा, उसकी लर्निंग बेहतर होती है इन कंपैरिजन रोट लर्निंग। जितनी भी चीज़ें जो लर्निंग हो बच्चे की, तो ये ध्यान में रखना है वो एक्टिविटी सेंटर्ड हो। और एक्टिविटी सेंटर्ड कब होगी? जब हम उसके पाठ्यक्रम को एक्टिविटी सेंटर्ड बनाएंगे। तो पाठ्यक्रम का निर्माण एक्टिविटी सेंटर्ड या एक्टिविटी को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। उस एक्टिविटी को रखने के लिए और एक्टिविटी को सेलेक्ट करने के लिए पहले हमें ये देखना है कि पाठ्यक्रम किन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है और किस आयु के बच्चों के लिए वह पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है। तो पाठ्यक्रम, जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो पाठ्यक्रम एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। So we are talking about the principle of variety. The curriculum should be broad based so as accommodate the needs of varied categories of people, so that they are able to take up subjects and participate in activities according to their capacities and interest. तो जो पाठ्यक्रम है उसमें वैरायटी होनी चाहिए, सब्जेक्ट्स की वैरायटी होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ की वैरायटी होनी चाहिए, जिससे जो छात्र हैं वो अपनी इंटरेस्ट, अपनी एबिलिटी और अपनी कैपेसिटी के अनुसार वो सेलेक्ट कर सकें। तो जब भी कभी हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें तो ये ध्यान रखें कि पाठ्यक्रम में वैरायटी रखें सब्जेक्ट्स की, एक्टिविटीज़ की। So the needs of the pupil also change from place to place. For example, pupils in rural areas, urban areas and hilly areas will have different needs. The needs of the boys and girls are also different. So these considerations should be the reflected in the curriculum. अगर हम बात करें कि जो रूरल एरियाज में हैं और जो अर्बन एरियाज में हैं, जो छात्र हैं उनकी नीड, उनकी आवश्यकताएं, उनकी एबिलिटीज, उनकी इंटरेस्ट अलग होगा, तो उसी के प्रकार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। और अगर हम सेम इसी तरह से गर्ल्स और बॉयज़ की इंटरेस्ट, उनकी नीड में डिफरेंस होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। Now, the next one is principle of coordination and integration. Of course, the principle are to be provided with selected experiences through various subjects and activities, but these must be well integrated. Various subjects and activities have to serve the same ultimate purpose, the achievement of the aim of education. The activities and subjects should not be put in after tight compartments, but these should be interrelated and well integrated so as to develop the whole child. बच्चे के समग्र विकास के लिए हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को तो रिप्रेजेंट कर देते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए तो ऑफर कर देते हैं, बट वो सब्जेक्ट्स इंटीग्रेटेड होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उन सब्जेक्ट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे कि बच्चे का समग्र विकास हो सके, वह पाठ्यक्रम बच्चे के समग्र विकास में अपना योगदान दे सके। Now the next one is principles of conservation. One of the main and important function of the education is to preserve and transmit our culture heritage.
This is the essential for human progress. Culture consists of tradition, custom, skills, attitude, conduct, values, knowledge. However, the curriculum farmers must make a suitable selection of the elements of culture, keeping in view their educational values and the developmental stage of each category of challenged learners. तो दूसरा प्रिंसिपल, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, मीन्स संरक्षण का सिद्धांत। हमारा देश विविधता का देश है और एजुकेशन का एक प्राइमरी एम है, एक इम्पॉर्टेंट एम है कि हम अपने कल्चर के लिए, अपनी संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करें, अर्थात एक दूसरी पीढ़ी के लिए हम ट्रांसमिट करें। तो ये जो चीज़ें हैं वो किसके द्वारा संभव हो सकती हैं? पाठ्यक्रम के द्वारा। पाठ्यक्रम के द्वारा हम कल्चर के लिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बहुत आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं और ये पाठ्यक्रम के निर्माण का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। द कंजर्वेशन ऑफ कल्चर helps to sustain the society. The culture should not be simply transmitted but also enriched. These should be the provision in the curriculum to develop the creative powers of the child so that they become a contributory member of the society. अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी की, रचनात्मकता के सिद्धांत की, तो पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे विषयों को कंसीडर करना चाहिए जिससे बच्चे की रचनात्मकता का विकास हो। जो बच्चे का एक हिडन टैलेंट है, जो बच्चे के अंदर एक क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी को बाहर लाया जा सके। तो इस प्रकार हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी निकल कर आ सके। Now the next principle is principle of flexibility. In our age, rapid developments are taking place in various fields. Consequently, the needs of the society are changing. The content of curriculum cannot be same for all the learners all the time to come. It should not be the static. It must be a dynamic and change with the changing times. It should be reflect the latest trends in the field of education and psychology. अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी के प्रिंसिपल की, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो करिकुलम डिजाइन किया जा रहा है उसमें लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन अर्थात समय के अनुसार डिमांड चेंज हो जाती है, समय के अनुसार नीड चेंज हो जाती है बच्चे की, और जब समय की डिमांड चेंज हो रही है, नीड चेंज हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें पाठ्यक्रम भी चेंज होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम इस प्रकार का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें उसमें परिवर्तन बहुत आसानी से किया जा सके। इस प्रकार का पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं करना चाहिए जिसमें उसे चेंज करने में असुविधा हो। तो पाठ्यक्रम जब भी बनाया जाए इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए जिससे आवश्यकता अनुसार परिवर्तन को देखते हुए उसमें भी कुछ परिवर्तन किया जा सके। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। Curriculum should be useful rather than ornamental. It should not only include subjects which owe their place into tradition. The curriculum must have a practical utility for students, so there should be some provision for technical and vocational education in the curriculum. तो करिकुलम जब भी निर्माण किया जाए करिकुलम का, तो वो इस प्रकार का करिकुलम हो, पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि वह उपयोगी हो, क्योंकि अनुपयोगी पाठ्यक्रम, यूजलेस पाठ्यक्रम बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, सोसाइटी की आवश्यकता क्या है, अगर पाठ्यक्रम कितना उपयोगी है। हमें पाठ्यक्रम को उपयोगी बनाना है, हमें ऐसे विषयों को सम्मिलित करना है जो बालक के लिए उपयोगी हो, वह उसका उपयोग अपने जीवन में कर सके। Now, the next principle is principle of balance. The curriculum must maintain a balance between subject and activities, between direct and indirect experiences, between academic and vocational education, between compulsory and optional subjects, between formal and informal education, and between individual and social aims of the education. अर्थात principles of balance,
प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस के अंतर्गत अगर बात की जाए तो पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जो फॉर्मल एजुकेशन दी जा रही है और इनफॉर्मल एजुकेशन दी जा रही है उसमें बैलेंस हो। इसी प्रकार से एक्टिविटीज बेस्ड और थ्योरेटिकल बेस्ड किस प्रकार से पाठ्यक्रम दिया जा रहा है तो बैलेंस हो। एक्सपीरियंसेस, क्लासरूम एक्सपीरियंसेस और आउट ऑफ द क्लास एक्सपीरियंसेस में भी बैलेंस होना चाहिए। इसी प्रकार से कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में बैलेंस होना चाहिए। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। थैंक यू।